Jai Guru. A quick disclaimer from the Nispruyo Kriayok team. Apologies for our limited production quality, as we are still working out the ins and outs of our content creation. You may notice that the video quality is poor, but try to keep that aside, and instead just listen to what Swamiji has to say. Our main motive is to spread our Guruji's word, so that is why we have started working on these videos to the best of our ability with the resources available to us. And if you understand what our Guruji has to say and it resonates within you, please don't hesitate to share this video with your friends so that they could also have the chance to hear his sacred teachings. We realize that Swamiji's English is not his strong suit, so that is why we are working hard on finding a translator to get these videos to you in comprehensible English as well. And of course, don't forget to like, subscribe, and comment on this video for future content you would like to see on our channel on Kriya Yoga meditation. This was the Nispruyo Kriya Yoga team. Please enjoy the video. Hari Om. So I think 2 weeks ago we discussed about this sadhana and crying things, and now I think everybody little understood. Slowly is going to understand. If you do kriya, then your heart and mind is going more sensitive, like a sensor. The car have sensor, your home have sensor. When some smoke is coming, so the instrument is sensing and start to buzzer sound, your home, kitchen. So same like our body have many sensor, but sensor is a many negatives karmas. So sensor is going fed, and when you do kriya, then sensor is clean and more start to sense environment around, feeling everything. So when you start to kriya every day proper, then your heart and mind is much sensitive. So why this sense is sensitivity coming? Because the between your soul and you, the fog is going disappear, and when fog is disappear, then soul light is coming direct to your heart, and your heart start to cry, and even you don't know, you start to feel, oh, my tears is coming, and I start to cry. Why cry? So the crying things because of the child. I'm giving you one example. If little child is someone's on lap, and if he or she is seeing own mother after 2-3 hours, so how he doing? He start to cry. The child, small child, when mother disappear many hour, and suddenly he start to see, oh, there is my mother, and she is not coming close, and the child is someone's other unknown person's lap. So the child start to cry. So same between God and you, the fog is disappear. Our heart start to sense that God energy, and the automatic start to cry feeling. But we have no knowledge. The sadhak have no knowledge. So that's why the sadhak is thinking, oh, why I'm crying? Maybe something material incomplete. I have no money, I have no enough food, or any just false reason start to create, because the sadhak can't understand why this kind of thing is coming. And that's why uh, the sadhak start to material way start to think, oh, that's why I'm feeling lonely or this. But truth is totally different. बात ऐसी चल रही थी कि जब आप लोग क्रिया साधना स्टार्ट करते हो ना, तो तुरंत नहीं होता है। 2-4-6 महीने के बाद में ऐसी चीजें होती है। किसी किसी को 1 साल के बाद, किसी को 3 महीने के बाद होता है। जब वो क्रिया करता है, तो क्रिया करने के बाद में फिर धीरे धीरे उसका मन एकदम सेंसिटिव हो जाता है, संवेदनशील हो जाता है, उसका हृदय, उसका मन, और ऐसे संवेदनशील हो जाता है जैसे
कार को सेंसर होते हैं ना, या घरों में सेंसर लगे होते हैं, जैसे धुआं होता है तो वो मशीन सेंस करती है और जोर से साउंड बजने लग जाता है, बजर बजने लग जाता है। तो उसी तरह वो हमारे जो सेंसर है ना, वो क्लीन हो जाते हैं साधना करने से, और वो बहुत जल्दी चीजों को सेंस करने लग जाते हैं। अब करने से क्या होता है कि वो प्योर हो जाता है। बिल्कुल प्योर हुआ तो कैसी फीलिंग आती है, उसको रोने का मन करता है, ऑटोमेटिक उसके आंसू आते हैं, ऑटोमेटिक रोने का मन करता है। अब उसको पता नहीं है कि ये क्यों हो रहा है, वो सोचता है व्हाई दिस इज कमिंग, टीयर्स इज कमिंग। अब वास्तव में वो क्या होता है, वो रोना परमात्मा के लिए होता है। आपके और परमात्मा के बीच के जो बादल हैं, वो साधना करने से जो फॉग है वो छट जाते हैं, और परमात्मा के वाइब्स आपके हृदय को, आपके अंदर मिलने लग जाते हैं। इस वजह से आपका मन जो है वो ऐसा पीड़ित होने लग जाता है। पर हम वो चीज ना समझ करके हम क्या समझने लग जाते हैं, उसको, उसका रीजन मटेरियलिस्टिक लाइफ में ढूंढने लग जाते हैं। किसी ने हर्ट कर दिया है इसलिए रोना आ रहा है, या पैसा नहीं है हमारे पास इसलिए रोना आ रहा है, इनफ खाना नहीं है इसलिए रोना आ रहा है, या जरूरतें पूरी नहीं हो रही है कहीं, तो भी किसी भी उठ पटांग, जैसे बच्चे नहीं होते क्या, बच्चे बच्चे रो रहे हैं पर उनको पता ही नहीं किस किस लिए रोना आ रहा है। भूख की वजह से रो रहा है या नींद आ रही है इसलिए रो रहा है, वो माँ को पता होता है कि भूख से रो रहा है या नींद से रो रहा है। ऐसे इस मामले में हम बच्चे हो जाते हैं, हमको समझते ही नहीं कि क्यों रोना आ रहा है। अब ये ठीक वैसे ही होता है कि जैसे ये छोटा सा बच्चा है ना, और उसको कई घंटे माँ किसी के पास छोड़ के चली गई, 4-5-6 घंटे, और वो माँ को देख ले दूर से कि माँ उधर ग्राउंड में खड़ी है या कहीं किसी से बात कर रही है, और माँ ने उसको नहीं लिया, नहीं आ रही उसके पास, और दूर से देख के पहचान ले कि अरे ये तो मेरी माँ है, तो बच्चा क्या करने लग जाता है, दूसरे की गोद में रोने लग जाता है ना, जोर जोर से। तो सेम वैसे ही है, साधना करने से उसके परमात्मा और उसके बीच का जो दूरी है वो क्लियर हो जाती है, बीच का फॉग है, बीच का जो वो धुंध है वो खत्म हो जाती है। और कुछ कुछ उसके अंदर के जीव को समझ में आने लगता है कि अरे परमात्मा मेरे पास आ गया है, या परमात्मा, उसको अंदर से ही वो वाइब्स मिलने लग जाते हैं, और इस वजह से उसको रोना आता है। तो आप अपना जो रोना है वो भक्ति में, प्रेम में डालिए, परमात्मा के लिए डालिए, और खूब खूब रोइए, एकदम आर्त हृदय से आप रोइए अगर रोना आता है तो, और रोइए और आप उसको अपनी प्रार्थना में डालिए, हे परमात्मा, हे परमेश्वर, कहाँ है तू, और कितने दिन और कितना टाइम लगेगा, कब मैं तुझे मिलूंगी या कब मैं तुझे मिलूंगी, और बस आप उसको पुकारो, आप उसमें डाल दो, झोंक दो अपने आप को। फिर धीरे धीरे धीरे, और फिर वो ऊर्जा डाइजेस्ट होने लग जाएगी, ऊर्जा पचेगी, और फिर एक अलग तरह के पीस में, आप रोने के बाद एक अलग तरह का पीस महसूस करोगे, और फिर वो करुणा के भाव में आप रहना सीख जाओगे। वो करुणा और प्रेम का भाव ऐसा होगा कि वो आपको 24 आवर्स, आप उस भाव में जब रहना सीख जाओगे तो आपके आजू बाजू बैठने वाले लोगों को भी अलग तरह की ऊर्जा महसूस होगी, लोगों का व्यवहार आपके प्रति बदल जाएगा। और ये शुरुआत है भाव समाधि में। जब रामकृष्ण परमहंस को देखा है ना, माँ की बात चलती थी और वो ट्रांस में चले जाते थे। ऐसे फिर किसी भी संत की, सत्संग की, परमात्मा की, किसी की भी, ऐसे परमात्मा की किसी भी रूप में चर्चा चलेगी और आप ऐसे भाव में चले जाओ, आप ट्रांस में चले जाओगे, आपके आंसू बहने लग जाएंगे, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों हो रहा है। अभी क्लियर नहीं हो रहा है, ये स्टार्टिंग पीरियड है। तो स्टार्टिंग पीरियड में आपको समझता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ये लंबा पीरियड गुजर जाता है, एक लंबे समय अंतराल के बाद में, फिर आपको समझ में आता है कि अरे अभी तो कभी भी होता, आरती हो रही है, भजन हो रहा है, सत्संग हो रहा है, कोई संत के प्रवचन सुने और आपके आंसू चालू हो जाते हैं, ये ऑटोमेटिक होता है। तो तुलसी सांभवी, सेम थिंग आई एक्सप्लेन इन हिंदी। माय इंग्लिश इज लिटिल पुअर बट आई ट्राई माय बेस्ट। Your English is good. But Don't I worry. think everybody understood what I want to tell you. Yes. तो वो जो उमड़ के जो आता है ना, अरे वो सबसे अद्भुत चीज है, मतलब ये सबसे बेस्ट माना जाता है ऐसी अवस्था को, बेस्ट सिचुएशन व्हेन यू फील टू क्राई। रामकृष्ण परमहंस आल्सो टोल्ड, रामकृष्ण परमहंस ने भी कहा था कि जब साधक को जब रोना आने लग जाए, वो रोने लग जाए परमात्मा के प्रेम में, तो ये साधना की सबसे अच्छी अवस्था मानी जाती है, भाव बन जाता है, फिर वो सहज ही सब अवस्थाओं को स्वीकार करने लग जाता है।
this kind of sadhak always going to accept all kind of situation. He stopped to fight problems or material life or material peoples. वो जूझना बंद कर देता है, वो समस्याओं से सरेंडर हो जाता है और परमात्मा उसकी सारी समस्याओं को अपने आप सॉल्व कर देते हैं। जब तक वो जूझता है तब तक वो फंसा है। द्रौपदी जब तक साड़ी को पकड़े हुई है और पुकार रही है सबको, फिर किसी ने नहीं सुना तो फिर कृष्ण को पुकार रही, तो भी कृष्ण नहीं आए, और जब साड़ी छोड़ के हाथ दोनों ऊपर कर दिए तो तुरंत साड़ी बढ़ने लग गई, वासुदेव कृष्ण प्रकट हो गए। तो बस वैसे ही है, ये आपको समर्पण की ओर लेके जाती है। ये जो अवस्था है, दिस क्राइंग थिंग्स मेकिंग यू सरेंडर, क्योंकि ऐसे आपको समर्पण करने को बोलेंगे तो कौन समर्पण करता है, कैसे होगा, नहीं होगा। ये ऑटोमेटिक होता है क्रिया करने से। तो ये वो क्रिया साधना है जिसके करने से चीजें अपने आप होने लग जाती है। अद्भुत है। Hari Om. My name is Kamlanand. Greetings from the Nispuryo Kriya Yoga team. We hope you enjoyed this video on our Guruji's lecture, as we enjoyed bringing it to you. We have just started out making these videos, so if you have any feedback on what we could do better, please leave it in the comment section below or send it to our email. If you would like to be initiated into Kriya Yoga or to meet with our Guruji, you can find our contact detail in the description below. And of course, don't forget to like, subscribe and share this video with your friends and family, so that they can also have the chance on hearing our Guruji's sacred teachings. And if you would like any questions answered, please leave them in the comment section below and we will do our best to answer them there. Thank you for your time. This was the Nispuryo Kriya Yoga team. Jai Guru. Hari Om.